So again, welcome you all, beta. I hope that my voice is audible to you. Yes, Yes, or sir. no? Yes, sir. Okay, Yes, okay, sir. okay, beta, okay. So beta, last 1 week we have started this chapter of Indian economy, and initial level we have started with this chapter with the primary sector, secondary sector and tertiary sector. जितनी चीजें आप लोगों को बताई गई हैं टीचर्स के द्वारा या कल मैंने जो बताया उसको हम एक बार फिर से रिकनेक्ट करते हैं so that you can easily understand the today's topic. The today's topic is organized sector and unorganized sector. But before starting this topic, organized and unorganized, first of all we will recapitulate some points which we have discussed yesterday. Yesterday we have discussed that how can we create employment. हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार किस तरीके से दे सकते हैं एंड जो हमारे देश का अनएम्प्लॉयड यूथ है इस अनएम्प्लॉयड यूथ को किस तरीके से रोजगार दे सकते हैं, किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं. दिस इज द क्वेश्चन. To sort out this queries, we have discussed some points like loan, investment, small scale industries, government policies. हमें ग्रांटिंग लोन करना चाहिए. द गवर्नमेंट शुड इन्वेस्ट सम मनी ऑन द डैम्स एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर. We have to develop some small scale industries and whatever the government is just make the policy that should be properly implemented in our system. हमारे सिस्टम में वो properly implemented होनी चाहिए. To provide the employment to the people in the another way, the government of India launched NREGA, that is known as मनरेगा 2005. और इसके बारे में हम लोगों ने बेटा ये डिस्कस किया था कि मनरेगा इज ए स्कीम विच प्रोवाइड 100 days assured employment to the unemployment youth in rural India. भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जो भी अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उन सबको रोजगार देने के लिए ये स्कीम चलाई गई थी. एंड अंडर दिस स्कीम द गवर्नमेंट प्रोवाइड 100 days assured employment. We also discussed if the government is failed to provide 100 days assured employment, in that situation government give 100 days unemployment allowances. उसको unemployment allowances भी वो देते हैं. So these are the some key points which we have already discussed, that how can we create more employment and NREGA and all these things. तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. तो जो एक सिनेरियो है बेटा देश का जहां पर बहुत सारे लोग काम करते हैं. आई एम ए टीचर, maybe your father is a doctor, maybe your father is working in any industry or maybe your father working in any other sector. तो जो भी हमारे ये सेक्टर्स हैं बेसिकली these are categorized are in two category. इसको हम कहते हैं डिवीजन ऑफ द सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ वे द पीपल आर एम्प्लॉयड. जो लोग जहां पर काम करते हैं उसके बेसिस पर there are two sectors are there. One is that organized sector and second is unorganized sector. इसको हिंदी में कहते हैं संगठित क्षेत्र और जिसको दूसरा कहते हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, असंगठित क्षेत्र. मींस ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड unorganized sector. So today we will start this topic, organized sector and unorganized sector. This is very important. Sometimes the board has asked the question that what is the difference between organized and unorganized sector. कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में क्या डिफरेंस है. समटाइम दिस क्वेश्चन टू बी आस्क्ड बाय द बोर्ड इन 4 marks 5 marks और समटाइम इन 3 marks. कई बार 3 marks में पूछा जाता है और 5 marks में पूछा जाता है. बहुत इंपॉर्टेंट है. किसी भी टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं तो हम सारी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं. बट माय डियर स्टूडेंट, व्हेनेवर वी जस्ट अपीयरिंग एनी कंपटीशन, जब भी हम किसी कंपटीशन में अपीयर करते हैं तो वी आर सपोज टू जस्ट यूज द शॉर्ट ट्रिक. जो शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं उसको हमें यूज करना होता है सो दैट वी कैन इजिली अंडरस्टैंड द टॉपिक, इजिली लर्न द टॉपिक, एंड इफ द क्वेश्चन come in the board examination we can write easily. So here we will discuss about that the organized and unorganized sector. If you focus on the organized sector, definitely you can easily understand the unorganized sector. What is happening in organized sector?
ज्यादातर वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं होता है। What are the points? What are the key features of the organized and unorganized sectors? We are here to discuss this. So, first of all, if we talk about that, the organized sectors are such enterprises or places where the terms of employment are regular. Organized sectors are such enterprises or places where the terms of employment are regular. Organized sector वो होता है जहाँ पे terms of employment regular होता है. If any person are appointed in any organized sector, किसी स्कूल में या किसी organized फैक्ट्री में सेलेक्ट होता है तो उसका जो terms of employment होता है वो regular होता है basically. And another features of the organized sector that whatever the policies, what are the laws made by the government, all these laws are made, जो भी बनाए गए हैं, these are implemented in these organized sector, means registered by the government. यानी कि सरकार के जो नियम कायदे कानून होते हैं, सरकार की जो सीमाएं होती हैं, सरकार के जो नियम होते हैं, they have to work according to the act which is implemented by the government. सरकार के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, जो कानून बनाए गए हैं, उसके हिसाब से ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम होता है. नंबर 1, that the terms of employment are regular, and number 2, they are registered themselves by the government. सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं. The third very important point, whatever the rules and regulations made by the government, all the organized sectors have to follow rules and regulations. जो भी सरकार के नियम, जो भी सरकार के कायदे होते हैं, जो भी सरकार के नियम होते हैं, वो सारे नियम कायदे कानूनों को उस ऑर्गेनाइज सेक्टर्स को, वो कोई भी एक फैक्ट्री हो सकती है, कोई स्कूल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एंड वो उसको फॉलो करते हैं. मीन्स इन ऑर्गेनाइज सेक्टर्स, all the organized sector, the owners of the organized sector follow the rules and regulations. So terms of employment are regular, organized by the government, and follow rules and regulations. Fourth is job security. If I am saying that all the rules and regulations which is enacted by the government, they have to follow. Terms of employment are regular. Companies are registered under the government. It means the worker feels job security. In organized sector, worker feels job security, and when any worker feels job security, he or she tries to give their 101%. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. जब हम किसी संस्थान में, जब हम किसी कार्यालय में, जब हम किसी फैक्ट्री में, किसी जगह पर काम करते हैं, and if the owner feel us that your job is secure, तो it means automatically हम बहुत खुशी काम करते हैं, ज्यादा अच्छे से काम करते हैं basically. So there is a job security, and next is that fixed working hours. Fixed working hours. This is the another feature of the organized sector, that in all the organized sectors, whatever the policies made by the government, the policies have to follow by the organized sector. Suppose that government has decided that working hours in the organized sector should not more than 8 hours. It means the people, those who are engaged in organized sector, उनको जो काम करना होता है वो 8 घंटे काम करना होता है. इसी के साथ एक और पॉइंट है. Suppose that government has decided that the worker cannot work more than 8 hours, but in the case of emergency, in the case of requirement, या किसी डिमांड के आधार पर, if we have to work more than 8 hours, अगर हमें 8 घंटे से ज्यादा काम करना पड़ता है, it means वो हमें जो एक उसका अलग से चार्ज मिलता है, उसको हमें अलग से चार्ज होता है. सपोज दैट आई एम वर्किंग इन ऑर्गेनाइज सेक्टर, माय ड्यूटी इज 8 to 5. सुबह मेरी 10 to 5 ड्यूटी है, और 10 से 5 बजे के बाद अगर मैं लास्ट के 2 आवर्स काम करता हूँ, 2 घंटे काम करता हूँ, तो 2 घंटे का मुझे सरकार के द्वारा, सॉरी, जो फैक्ट्री ओनर है या कंपनी है, जहां पर भी मैं हूँ, जो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर है, उस सेक्टर के द्वारा मुझे अलग से जो पैसा है वो देना पड़ता है. ओवर टाइम जिसको हम लोग कहते हैं कि ओवर टाइम का पैसा मिलता है.
एंड इसके अलावा दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ एनी पर्सन आर वर्किंग इन एनी और सेक्टर, organized sector, terms of employment are regular, registered by the government, follow rules and regulations, job security, fixed working hours and that many benefits, और भी बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स होते हैं जो उनको मिलते हैं। ये सारे ऑर्गेनाइज सेक्टर की फीचर्स हैं। जब इसी आधार पर हम आगे बढ़ते हैं, अवनी एंड ऑल थ्री, बेटा माय वॉइस इज ऑडिबल ना? एनी प्रॉब्लम? Yes, sir. No, sir. No, sir. No problem. ओके ओके बेटा। तो अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि वी आर सपोज टू यूज द शॉर्ट ट्रिक। देखिएगा, हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, एक बच्चा है 8 घंटे पढ़ता है, दूसरा बच्चा है वो भी 8 घंटे पढ़ता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि मैं भी 8 घंटे पढ़ता हूँ, मेरा दोस्त भी 8 घंटे पढ़ता है, लेकिन उसके 90% मार्क्स आते हैं और मेरे आते हैं 60%। वो तो जरूरी है। इसका रीजन क्या है बेटा? इसका रीजन ये होता है कि वी हैव टू अडॉप्ट द काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी हमें इस तरीके की अडॉप्ट करनी पड़ती है ताकि हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट दे सकें एंड वी कैन गेट द गुड मार्क्स। सपोज दैट यू कीप ऑल द पॉइंट्स इन योर माइंड रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइज सेक्टर, आप इसी को ही अपोजिट कर दीजिएगा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इसी को ही अपोजिट कर दीजिएगा। यू कैन कंप्लीट योर आंसर, मेरे बिना बताए हुए ही आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने कहा टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर, हम कह देंगे टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर नॉट रेगुलर, रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, दे आर नॉट रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, follow rules and regulations, there are rules and regulations for the unorganized sector, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, there are rules and regulations for the unorganized sector but they are not followed by the unorganized sector. लो पेड एंड नॉट रेगुलर, कम सैलरी मिलती है, और दूसरी बात है जो भी हमारा काम होता है इट इज नॉट रेगुलर, वो हमारा रेगुलर नहीं होता है। Yes, sir. Now one by one we'll discuss these unorganized sectors. That terms of employment are not regular. Means if we are working in the unorganized sector, the terms of employment are not regular. Anytime the company owner, the factory owner asks us to leave without reason, आज आपका काम खत्म हुआ, कल से आप काम पे नहीं आएंगे, this is the kind of system in unorganized sector. That's why I am saying that terms of employment are not regular. बिना किसी रीजन के आपको लीव करने के लिए वो कंपेल कर सकते हैं, आपको बाध्य कर सकते हैं। That's why I am saying that the terms of employment are not regular. Second thing, not registered by the government. If they are not registered by the government, it means they are not एक तरीके से they are not agree to follow the rules and regulations which is made by the government. सरकार के द्वारा जो रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं उनको ये फॉलो करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो बेसिकली they are not registered in the not registered by the government. Second is that third point is very important, rules and regulations that not followed. देखिएगा, इंडिया इज इंडिपेंडेंट कंट्री, लास्ट 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर एवरीवन इन इंडिया, भारत में रूल्स एंड रेगुलेशन सभी के लिए हैं, बट सम पीपल फॉलो एंड सम पीपल डोंट फॉलो। कुछ लोग फॉलो करते हैं, कुछ लोग फॉलो नहीं करते हैं। सेम थिंग हैपेंस इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशंस बट नॉट फॉलो, उनके द्वारा फॉलो नहीं किए जाते हैं। और सपोज दैट अगर रूल्स एंड रेगुलेशन है और उनके द्वारा फॉलो नहीं किए जाते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जो एक हरसमेंट है, जो एम्प्लॉय जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके साथ में बहुत अच्छी चीजें नहीं होती हैं। सैलरी इज नॉट ऑन टाइम, वर्किंग आवर्स नॉट फिक्स, नो जॉब सिक्योरिटी, अनसर्टेनिटी एक होती है बेसिकली अगर हम देखें तो। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट नो पेड एंड नॉट
regular. Suppose that you are working in the organized sector. You are working organized sector and working 8 hours daily. You are getting 10,000 in a month. Same work you are done in unorganized sector. Same hours, same work, but you are not sure that you will get the same amount what is get by getting organized sector. मैं भी सेम काम कर रहा हूँ. I am in organized sector. One of my friend is working in the unorganized sector. He is also doing the same task. Working are same, but the salary is not same. जो हमारा पैसा मिलता है वो हमें सेम नहीं मिलता है. This is the drawback of the unorganized sector, and the working hours not fixed. We have discussed that there are working hours in organized sector. Organized sector में working hours fixed होते हैं. You have to join your duty 10 o'clock and you have to finish your duty 5 o'clock. But in unorganized sector, ये चीजें हम नहीं कह सकते हैं. आप 10 बजे जाते हैं, हो सकता है शाम को 5 बजे आपकी छुट्टी ना हो, आपको 8 बजे तक या 9 बजे तक काम करना पड़ सकता है. अब sometimes there is a question can become in your mind कि सर ये तो बड़ा मुश्किल है, ये तो बहुत दिक्कत है. जो लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं वो कुछ नहीं कहते हैं. क्यों नहीं कहते हैं? वो इसलिए नहीं कहते हैं. देयर इज a 135 करोड़ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड सिचुएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आर देयर. देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, इसलिए जो व्यक्ति जहां रहता है उस हिसाब से वो अपना काम करता रहता है. either they are working in the organized sector or either they are working in unorganized sector. Everybody just try to secure their job because the situation of unemployment are day by day increasing in India. We are failed to control our population. हमारे देश की जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करने में हम इस तरीके से फेल रहे हैं कि इस तरीके की सिचुएशन कैसा होती है. अब आप खुद सोचिएगा कि सर आपने बताया था नरेगा होता है, नरेगा में 360 दिन होते, 365 दिन होते हैं. सरकार हमें 100 डेज का श्योर एम्प्लॉयमेंट देती है. अगर हमें काम नहीं भी मिलता है देन गवर्नमेंट प्रोवाइड 100 डेज अश्योर एम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस हम लोगों को देती है. बट उस 3 महीने के काम से या 100 दिन के काम से हमारा घर नहीं चल सकता है. ये सारी चीजें नहीं होती हैं. तो मेन चीज ये है कि ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में जो कर्मचारी हैं वो बटे हुए हैं. The person those who are working in the organized sector they get more benefit. The person those who are unorganized sector they are not get more benefit. वो उनको ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलते हैं. तो एक तरीके से देश के अंदर ये सिचुएशन है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर्स है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स है, और जिसकी वजह से जो स्थिति है वो थोड़ा सा दिक्कत है. लोगों का बहुत ज्यादा हैरेसमेंट होता है, लेकिन बिकॉज ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन वी आर नॉट इन पोजिशन टू रेज आर इश्यूज. अपने जो इश्यूज हैं हम उनको रेज करने के लिए स्वतंत्र नहीं है. उसका एक कारण है क्योंकि हम बेसिकली एक अनएम्प्लॉयमेंट की जो सिचुएशन है उससे बंधे हुए हैं. नाउ दैट questions can become in your examination. This is a very important beta. The question can become in your examination. The worker, those who are working in unorganized sector, how can we protect? हम उनको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? देखिएगा सोशल साइंस में कोई टिपिकल टर्मिनोलॉजी नहीं है. कोई मैथ्स का कैलकुलेशन आपको नहीं करना है, कोई रेक्टिफिकेशन आपको नहीं करना है. सिंपली यू हैव टू अंडरस्टैंड द टॉपिक, यू हैव टू अंडरस्टैंड द जो एक सेक्टर की एक फील है उसको समझना है. वी हैव डिस्कस्ड ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड देयर आर वन पॉइंट कम्स एवरीबॉडी माइंड कि सर देयर इज एक्सप्लॉयटेशन इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. इफ यू फील दैट देयर इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, व्हाट शुड बी डन टू द पीपल दोज हु आर वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर? उनके लिए क्या किया जाना चाहिए? उनका जो such policies to implement such programs so that जो एक्सप्लॉयटेशन है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में उसको हम ग्रेजुअली कम कर सकें, उसको हम डाउन कर सकें. This is the very important question, my dear students. Sometimes the examiner can ask the question if there is a harassment, if there is a एक तरीके से जो प्रॉब्लम है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में, how can we protect the worker
those who are working in unorganized sector, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, हम उनको किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आज मैं 2 चीजें आप लोगों को बता रहा हूँ, कल से मैंने 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए हैं और मैक्सिमम बोर्ड में आते हैं। समटाइम नारेगा के बारे में पूछा जा सकता है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ नारेगा। दूसरा पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर वर्कर दोज हु आर वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। बेटा ऑन द डेली बेसिस हम सभी बच्चों को अनम्यूट करेंगे धीरे धीरे। आज जैसे हमने कल एक बच्चे को किया था, आज हमने 3-4 बच्चों को किया है, कल हम बाकी और दूसरे बच्चों को लेंगे। अगेन आई एम चेकिंग दैट माय वॉइस इज ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। Yes, Yes, sir. sir. Perfect. Yes, sir. ओके ओके बेटा। एंड जो भी हम लोगों ने एक्सप्लेन किया, कोई डाउट तो नहीं है अभी तक बेटा? No, No, sir. sir. चलिए, जैसे डाउट हो तो एक बार आप पूछ लीजिएगा, बाकी में अभी हम आपसे डिस्कस करेंगे। द क्वेश्चन इज दैट हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। जो प्रोटेक्शन है वो किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, कैसे लोगों को हम बचाएं जिनका एक्सप्लॉइटेशन होता है, जिनका हैरेसमेंट होता है। So there is a need of the protection and support to worker in the unorganized sector। इस पॉइंट है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। The government can fix the minimum wage rate। अब यहाँ पे एक वर्ड मैं लिख रहा हूँ, मिनिमम वेज रेट। मिनिमम वेज रेट का मतलब है कि एक काम का एक अमाउंट फिक्स होना चाहिए। अब हालांकि ऐसा नहीं है कि नहीं है, एक हमारा जो मिनिमम वेज एक्ट है, इट इज ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड। देश के अंदर इम्प्लीमेंटेड है कि मिनिमम वेज, अगर मान के चलिए सरकार ने डिसाइड कर दिया कि इस पर्सन दोज आर वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर उसको 400 रुपीज पर डे का हिसाब देना ही पड़ेगा, तो वो फॉलो करना पड़ेगा। और ऐसा है भी, सारी चीजें हैं। इफ आई मेंशन दैट मिनिमम वेज रेट शुड बी देयर टू प्रोटेक्ट आवर वर्कर, द मिनिमम वेज एक्ट आर ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। द मेन क्वेश्चन है जो सरकार के द्वारा नियम, कायदे, कानून बनाए गए हैं, उनको समय समय पे किस प्रकार से हम चेक करें, किस तरीके से हम उसको चेक करें कि व्हाट आर द पॉलिसीज मेड बाय द गवर्नमेंट, दीज आर एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड और नॉट। तो फिर भी हम इसको डिस्कस करते हैं। टू प्रोटेक्ट आवर वर्कर फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल मिनिमम वेज रेट शुड बी डिसाइडेड। सरकार के द्वारा मिनिमम वेज रेट डिसाइड होना चाहिए। द गवर्नमेंट प्रोवाइड चीप लोन। दूसरा है हमारा चीप लोन। जितने भी वर्कर काम करते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, अगर हम अपने लोन को एक्सटेंड कर दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ आई एम वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, my terms of employment are not regular, I am not getting the good salary, I am low paid and working hour also not fixed, I am not happy as a worker in an unorganized sector. But my dear student, if government provides the facility of the cheap loan, definitely I will quit from the unorganized sector and I will start my own business। मैं अपना खुद का बिजनेस शुरू करूंगा। So to protect the worker from the unorganized sector, government should implement such policies so that we can extend our loan facilities। जो हमारा एक लोन सिस्टम होता है, हम उसको ज्यादा से ज्यादा एक्सटेंड कर सकें, ज्यादा से ज्यादा हम उसको बता सकें। दूसरी चीज जो भी हमारा है, जो हमारा बेसिक मिनिमम सर्विस है, हेल्थ है, एजुकेशन है, ये सारी चीजें हैं, इससे भी अगर सरकार थोड़ा सा ध्यान दे तो जो सपोज दैट आई एम वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, आई एम नॉट गेटिंग अ गुड सैलरी, माय वर्किंग आवर्स आर नॉट फिक्स्ड, बट द फैसिलिटीज विच इज गिवन बाय द गवर्नमेंट लाइक हेल्थ, लाइक ड्रिंकिंग वाटर, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, लाइक हेल्थ, एजुकेशन, ऑल दीज थिंग्स जो सरकार के द्वारा बेसिक फैसिलिटीज दी जाती हैं, अगर वो ठीक तरीके से इम्प्लीमेंटेड है तो हम कई बार क्या होते हैं कि इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। तो टू प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जो सरकार की जो बेसिक सर्विसेज है, उन बेसिक सर्विसेज को हमें ज्यादा से ज्यादा इम्प्लीमेंट करना चाहिए और ठीक तरीके से करना चाहिए।
The government should develop small scale industries. The government should enact a new law regarding the salary range and overtime. जो सैलरी रेंज है उसको लेकर भी सरकार कुछ करना चाहिए। जो मिनिमम वेज एक्ट है उसको भी बढ़ाया जाना चाहिए। इसके अलावा समय समय पे जो चेक एंड बैलेंस की पोजीशन है सरकार के द्वारा, दैट शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन अ प्रॉपर वे। कहने का मतलब ये हुआ, द पर्सन दोज हु आर वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, this is the responsibility of the government to just secure their life, save their life. We are supposed to make such policies, we are supposed to make such law so that we can protect our worker. हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रहने वाले जो व्यक्ति हैं, जो कर्मचारी यहाँ पे काम कर रहे हैं, हम उनको ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्ट कर सके। तो आज मैंने आप लोगों को 3 चीजें बताई हैं। मैं फिर से 1 मिनट 2 मिनट में रिकैपिचुलेट करके आपके पास आता हूँ। नंबर 1, कल मैंने नरेगा के बारे में बताया था। आज मैंने आपको 2 चीजें बताई हैं, डिफरेंस बिटवीन द ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। Sometimes the examiner can ask that what are the difference in organized and unorganized sector. Third, very important question can be asked by the examiner, there are exploitation in the unorganized sector. Exploitation होता है unorganized sector में, what policies should be adopt? हमें कौन सी पॉलिसीज अडॉप्ट करनी चाहिए so that we can protect our worker those who are working in unorganized sector. जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, हम उसको किस तरीके से सेव कर सकते हैं, किस तरीके से उनकी लाइफ को बचा सकते हैं और किस तरीके से हम उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये आज के हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, नरेगा, और किस तरीके से हम इनको बचा सकते हैं, किस तरीके से हम अपने वर्कर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इस फाइन? Yes, sir. ओके। Avni, any doubt you want to ask, beta? No, sir. Any question you want? Okay. Rest of the Archita, you want to ask beta any question? Archita? Sir, Archita is mute. Okay. Third, there is another third girl child. Diveshri. Divishri? Sir, no. Sir, no. Okay. So what the topic we have explained? Do you understand all these 3 topics? Yes, sir. Okay. In the evening, everyone, class 10, C and D, I will instruct the class teacher कि आज सोशल साइंस का वर्क मंगाए, जितना आज आपको कराया है, ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तो जब आपको भेज दी जाएगी बेटा, पूरा होना चाहिए। It's fine? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So next week we will start another topic, that is public sector and private sector, and hopefully within 1 or 2 lectures we will finish this chapter. Acha, one more thing I want to discuss with you all, 10 C and D. Yesterday we have uploaded the list of the deleted chapters. All of you received beta? Yes, sir. Yes, sir. आप the CBSE है decide the reduce the 30% syllabus, और जो भी subject wise 30% syllabus reduce हुआ है वो हम लोगों ने उसको किया है। Fine. So you discuss all these points, that organized sector, unorganized sector, and how can we protect our worker from the unorganized sector. हम अपने वर्कर को अनऑर्गेनाइज सेक्टर से किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। So sometimes that in the board examination question can be asked that what is the difference between the organized sector and unorganized sector, and sometimes that the features of the NAREGA can be asked by the examiner. So thank you for today. We will meet on a Tuesday and we will start another topic, that public sector and private sector. Regarding these topics, Thank you, sir. if you have any queries, listen beta, regarding these topics, if you have any queries, you can contact in the evening 4 to 6. शाम को 4 से 6 के बीच में you can contact, and if you have any problem. Is okay? Okay, sir. Okay, Yes, sir. sir. Okay, beta. Thank you beta. Thank you, Thank you very much. Thank you, sir.